Let's talk about October November 2019 variance 42 alternative to practical. Three gases A, B, and C have the properties shown. Okay. गैस A जो है वो लेस डेंस देन एयर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, कलरलेस है. B जो है वो मोर डेंसर देन एयर, इनसॉल्युबल, कलरलेस आल्सो. C जो है वो मोर डेंसर देन एयर, सॉल्युबल एंड ग्रीन कलर होता है. ठीक है. Some sets of apparatus X, Y, and Z used to collect gases are shown. गैस in ये X है, ये Y है और ये Z है. ठीक है. वो कह रहे हैं apparatus D is used to collect the gases. Name apparatus D. तो बेटा गैस जार. Which two set of apparatus from X, Y, and Z can be used to collect gas A? तो गैस A जो है वो less denser than air है. इसका मतलब आपने उसको कलेक्ट करना है थ्रू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी इन गैस जो है वो इन्वर्टेड होना चाहिए. ठीक है. तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों केसेस के अंदर गैस जार जो है वो इन्वर्टेड है. तो Y and Z. Which set of apparatus X, Y और Z can be used to collect gas C? गैस C जो है वो मोर डेंसर देन एयर है, सॉल्युबल है, ग्रीन है. इसका मतलब मैं गैस का कलेक्शन करूंगा अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी गैस जार की ओपनिंग ऊपर की तरफ होनी चाहिए. ठीक है. तो आप लिख दीजिए यहां पर X. उसके बाद वो कह रहे हैं स्टेट वाई apparatus Y is less suitable than apparatus X to collect gas A. apparatus Y गैस कलेक्ट गैस A बेटा डेंसर देन एयर है, इनसॉल्युबल है, कलरलेस है. ठीक है. बिकॉज B जो है वो मोर डेंसर देन एयर है, इसलिए Y जो है वो लेस सूटेबल होगा B को कलेक्ट करने के लिए. बिकॉज B is denser than air. State why apparatus X is less suitable than apparatus Z to collect gas B. Because apparatus X is less suitable to collect gas B. बिकॉज B जो है वो कलरलेस गैस है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब फिल हुआ कब फिल नहीं हुआ. गैस B is colorless difficult to determine when apparatus X is full. ओके एक मिनट. apparatus D है, D. ठीक है. apparatus D. गैस जार कब फुल होगा पता ही नहीं चलेगा. Calcium carbonate reacts with hydrochloric acid. Vigorous bubbling is seen because gas release only carbon dioxide. A student investigates the rate of this reaction using 3 samples of calcium carbonate.
Each sample has a different particle size. ठीक है. In each experiment, the student adds all of the calcium carbonate and excess to dilute hydrochloric acid in apparatus E. The weighing bottle is replaced on the balance. The student records the mass every 30 seconds. In experiment 1, the student uses large lumps of calcium carbonate. Name apparatus E. Conical flask. Which variable other than mass is measured in the experiment? Name the piece of apparatus used to measure this variable. तो obviously बेटा आपने टाइम नोट डाउन करना है ना, और टाइम नोट डाउन करने के लिए स्टॉप क्लॉक यूज करूंगा मैं, स्टॉप वॉच भी कह सकते हैं आप. ठीक है, टाइम को मेजर किया जाता है इसलिए. Why does the mass decreases? Because कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहां से रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका मास जो है वो डिक्रीज होगा. Because carbon dioxide gas is escaped from the flask. ठीक है, alert रहना. The student does 2 more experiments. In each experiment, the student uses calcium carbonate of different particle sizes. In experiment 2, the student uses small lumps of calcium carbonate instead of large lumps. ठीक है. In experiment 3, a student uses powdered calcium carbonate instead of large lumps. Suggest 2 variables other than students keep constant so that the particle size of calcium carbonate is the only variable that affects the rate of reaction. तो बेटा आप जाहिर सी बात है HCl यूज कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को, ठीक है, और दूसरा जो है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना होगा. The student plots a graph of the result. ठीक है. Describe how the graph are used to decide which experiment has the fastest rate. Obviously, experiment 3 has the fastest rate because उसका surface area सबसे ज्यादा है, तो ये fastest rate होगा क्योंकि सबसे steeper curve है ये. तो this one is the experiment 3rd. Obviously, experiment 2 में small lumps use किए थे आपने, तो ये experiment 2 हो जाएगा और ये experiment 1 हो जाएगा. जैसे जैसे आपने ये स्मॉल लम्स यूज किए थे तो इसका ये ग्रेडियंट आया, यानी लेस स्टीपर हुआ, और ये लीस्ट स्टीपर है. क्लियर हो गई बात? तो आप लिखेंगे यहां पर experiment 3 because it has the steepest curve. एंड ऑब्वियसली आप नोट करें वो लेवल ऑफ भी हो गया ना एक्स एक्सिस से, तो आप ये भी लिख सकते हैं स्टीपेस्ट कर्व which levels off ठीक है. राइट अ नंबर इन ईच बॉक्स द ग्राफ, ये तो बेटा हमने बता दिया आपको. स्टेट हाउ द ग्राफ शोज दैट द रिएक्शन स्टॉप, तो आप जानते हैं क्योंकि रिएक्शन, ओ एक मिनट, ये नहीं लिखना यहाँ पर क्योंकि ये आंसर आगे आ जाएगा. State how the graph shows that the reaction is stopped. The graph level off
Why do the reaction stop? Reaction इसलिए stop हो गया क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड completely used up हो गया है. All the HCl has been used up. Then next question. An unlabeled bottle contains solid sodium carbonate. Another labeled bottle contains solid sodium hydrogen carbonate. The reaction between sodium carbonate and dilute hydrochloric acid is exothermic. The reaction between sodium hydrogen carbonate and dilute hydrochloric acid is endothermic. Plan experiments using the reaction of each solid with dilute hydrochloric acid to identify each solid to determine which reaction produces large energy per gram of solid. You may use any apparatus normally found in chemistry laboratory, but no other chemicals. You should state all the measurements you would make. Chemical equations are not required. Okay. How much marks? It has 7 marks. My goodness. Okay. Measure the mass of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate by weighing balance, which is also called electronic balance. Measure the volume of HCl through pipette and then place it in the conical flask. In this separate conical flask. Containing sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. Add hydrochloric acid in both the flask and by using thermometer, measure any temperature इसके बाद आप क्या लिखेंगे sodium carbonate reaction with HCl is exothermic.
Hence, temperature rises during the reaction. Sodium hydrogen carbonate reaction with HCl is endothermic. Thus, temperature falls during the reaction. In order to determine energy change per gram, always use temperature change. ठीक है जी. Guys, remember one thing. किसी बच्चे की अगर केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, उसने डिटेल से नहीं पढ़ी केमिस्ट्री, उसका ये क्वेश्चन 3 जो कि अब यूजुअली मैं देख रहा हूँ मुसलसल पेपर में आ रहा है, प्लान करने के लिए दे रहा है, वो नहीं हो पाएगा. एटीपी क्वेश्चन 3 प्लान करना सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जिसने बहुत अच्छे से डिटेल से केमिस्ट्री पढ़ी हो और अच्छे से प्रैक्टिस भी की हुई हो. ठीक है, ये याद रखिएगा. इट इज नॉट सो इजी. Question number 4. A student is provided with solution aqueous chromium 3 nitrate, aqueous iron 2 chloride, aqueous iron 3 chloride. The student tests the 3 aqueous solution by adding each reagent shown in the table. Record the observation in the table. Write no reaction where appropriate. Okay, aqueous 3 chromium nitrate, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप ऐड करेंगे तो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आएंगे. सॉरी, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे. ओके, aqueous silver nitrate add by dilute nitric acid since it has nitrate ions, तो जाहिर सी बात है कोई भी गैस रिलीज नहीं होगी, कोई भी टेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ सब जगहों पे क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि सिंस वी आर यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पर नाइट्रेट आइंस हैं, तो नाइट्रेट से नाइट्रेट का कोई रिएक्शन नहीं होता. इनफैक्ट ये रिएजेंट उस वक्त यूज होता है जब मुझे हैलाइड आइंस टेस्ट करने होते हैं, व्हिच इज व्हाई मैं यहाँ पर नो रिएक्शन लिख दूंगा. उसके बाद है एक्वस आयरन 2 क्लोराइड. अगर एक्वस आयरन 2 क्लोराइड है तो ऑब्वियसली बेटा मुझे ग्रीन प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे. और प्रेसिपिटेट्स रिमेन्स इनसॉल्युबल. ठीक है, अब आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिंस वी हैव क्लोराइड आयंस, तो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे. ठीक है बेटे. Oh my goodness. Wait. My bad, my bad. He's saying aluminum and aqueous sodium hydroxide plus heat. इसका मतलब नाइट्रेट का टेस्ट हो जाएगा. तो नेम ऑफ द गैस क्या होगा बेटा? अमोनिया. टेस्ट फॉर गैस.
using red litmus paper. Result for test, litmus turns blue. ठीक है, यहां पर नो रिएक्शन क्योंकि वो सिल्वर वो नहीं है, नाइट्रेट नहीं है, तो नाइट्रेट का टेस्ट नहीं आएगा। एक्वस आयरन 3 क्लोराइड में क्या होगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट्स होंगे, इनसॉल्युबल होगा इन एक्सेस एक्वस NaOH। क्लोराइड आइंस हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे, और जाहिर सी बात है नाइट्रेट आइंस नहीं है तो यहाँ पर नो रिएक्शन। Question number 5. A student does an experiment to determine the percentage of mass of potassium iodide 5 in a sample of impure potassium iodide 5. The sample of impure potassium iodide 5 is placed in a previously weighed container which is then reweigh. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 8.20 minus 5.28, it's going to be 2.92, तो यहां लिख देते हैं 2.92. The student transferred the sample of impure potassium iodide 5 to a beaker, adds water, and stirs with a glass rod until all the solid had dissolved. The solution is then transferred to a suitable container. The beaker is washed out twice with water, and the washings are transferred to the same container as the solution. Why is the beaker washed out and with the washing transferred to the same container as the solution? हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम मेक श्योर करते हैं कि सारा का सारा सोल्यूशन जो है वो बीकर से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर हो जाए। टू मेक श्योर all the solution is transferred from beaker to conical flask. The solution of impure potassium iodide 5 is made up to 500 cm³ with water. This is solution G. Name the container in which solution G is made. तो जाहिर सी बात है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिखूंगा मैं, क्योंकि सॉल्यूशन को जब भी मेकअप किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में किया जाता है। The student transferred 25 cm³ of G into a conical flask using pipette. Which liquid should be used to wash out the pipette? बेटा जब भी हमें पिपेट से किसी भी सॉल्यूशन को मेजर करना होता है हम उसी सॉल्यूशन को उससे रिंस भी करते हैं, वॉश भी करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन जी ही होगा क्योंकि उसी को मैंने मेजर करना है तो मैं उसी से रिंस भी करूंगा यानी वॉश भी करूंगा, ठीक है। The student adds an excess of aqueous potassium iodide and an excess of dilute sulfuric acid to the conical flask. A reaction occurs to form iodine. This is solution H. The amount of iodine produced can be determined by titration with aqueous sodium thiosulfate with a suitable indicator. Solution L is 0.1 mole per dm³ sodium thiosulfate. L is put into a burette यानी सोडियम थायोसल्फेट ब्यूरेट में है और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पोटेशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है till the end point is reached. Why is it unnecessary to measure exactly the same amount of aqueous potassium iodide and dilute sulfuric acid for each titration? वो इसलिए ऐसा होता है ताकि हम excess amount of acid और potassium iodide use करें so that excess amount of potassium iodide and H2SO4 can be used
Okay, 3 titrations are done. The diagram shows part of the burette with the liquid levels at the beginning and at the end of each titration. Use the diagrams to complete the table. ये बेटा आपके पास है 0.0 और ये है 22.6, ठीक है। फिर है बेटा आपके पास 23.6 और फिर है आपके पास 46.8, फिर है आपके पास 10.2 और फिर है 32.8। तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 22.6 का, यहाँ डिफरेंस आप निकालेंगे बेटा 23.2 का, एंड गाइस ये डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 22.6 का। सो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स 1 और 3 होंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। यूज द बेस्ट रिजल्ट टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है 22.6 ही होगा बेटा, और कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं तो 22.6 प्लस 22.6 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 22.6, ठीक है। Calculate the number of moles of sodium thiosulfate in the average volume of L. Sodium thiosulfate की concentration is 0.1 mole per dm cube. तो it's quite easy. अगर मैं 1000 cm cube ले रहा हूँ और उसमें 0.100 moles हैं और average volume 22.6 है, तो उसमें कितना होगा आपके पास? मेरे पास आ रहा है 0.00226 moles, ठीक है। यूज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन H इन द कॉनिकल फ्लास्क। सो ये मेरे पास 2 मोल्स हैं, ये मेरे पास 1 मोल है। अगर मैं 0.00226 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 0.00226 है, तो मोल्स ऑफ आयोडीन हो जाएगा मेरे पास 1.13 into 10 to the power -3, that is 0.00113 moles, ठीक है। अलर्ट रहना। Use the equation to calculate the number of moles of KOI3 that produces the number of moles of iodine calculated in H. This is the number of moles of KOI3 in 25 cm3. So मेरे पास यहाँ आयोडीन के मोल्स हैं, ये 1 मोल है, ये 3 मोल है। अगर ये 0.00113 है तो बताइए ये कितना होगा, और ये 25 cm3 में होगा। तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको 3 से, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 0.0000377 राउंड ऑफ होकर आ रहा है, वरना मेरे पास आ रहा है 0.0000376, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of KOI3 in 500 centimeter cube. बहुत इजी है बेटा, 25 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपने कितने कैलकुलेट किए हैं? 0.00377 मोल्स, राइट। 500 cm क्यूब में कह रहे हैं कितने होंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 500 से और डिवाइड करते हैं 25 से, तो ये हो जाएगा 7.53 into 10 to the power -3, 0.00753, ठीक है। कैलकुलेट द MR ऑफ KiO3। तो बेटा KiO3 का MR कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास मोल्स होने चाहिए और मेरे पास मास होना चाहिए, और मास हमने यूज किया था 2.92, याद है आपको। तो ये हो जाएगा 2.92
डिवाइडेड बाय 0.00753, तो यहाँ से MR आ जाएगा 2. ओह माय गुडनेस, ओके एक मिनट, 2.92 divided by 0.00753, it's 387.78. ठीक है, टू पॉइंट नाइन, एक मिनट, 2.92 divided by 0.00, ओके नहीं, तो जरूरत ही नहीं है, माय बैड। पोटेशियम 39 है, प्लस आयोडीन 127 है, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3 है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज 204। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं यूज योर आंसर टू J and K to calculate the mass of potassium iodate 5 in the sample of impure potassium iodate 5। J and K, ये मोल्स आ गया आपके पास, ये MR आ गया मेरे पास, मैं अब मास कैलकुलेट कर सकता हूँ 0.00753 for this। तो ये हो जाएगा मास ऑफ impure KiO3 is 0.00753 into 214, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.00753 into 214, it's going to be 1.611। ठीक है, यूज योर आंसर टू ए, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मास ऑफ प्योर आ जाएगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर, और मास ऑफ इम्प्योर हमने कितना निकाला था बेटा, 2.92 into 100, तो ये हो जाएगा 55.2%। ठीक है, इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। A student passes an electric current through an electrolyte of aqueous copper sulfate using an inert anode and a copper cathode। ठीक है, bubbles of gas are observed at the anode, name the gas given off at anode, obviously oxygen gas बेटा। गैस के लिए टेस्ट कौन सा होगा, फ्लोइंग स्प्लिंटर, फ्री लाइट्स हो जाएगा। A layer of copper is deposited at copper cathode. Student wants to find the mass of copper deposited. The student removes the cathode after 5 minutes. What should the student do to the cathode before weighing it? और जाहिर सी बात है बेटा, वे करने से पहले मैं उसको अच्छे से वॉश करूंगा, ड्राई करूंगा। Wash it and then dry।
The student weighs the cathode. Which essential measurement is missing from the experimental method? जाहिर सी बात है, आप कैथोड का मास उस वक्त वे करोगे जब आपने इनिशियल मास बिफोर एक्सपेरिमेंट नोट डाउन किया था. तो मास ऑफ कैथोड बिफोर एक्सपेरिमेंट इज मिसिंग. एक्सपेरिमेंट से पहले कॉपर इलेक्ट्रोड का मास वे करोगे. जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो फिर मास ऑफ कॉपर कैथोड दोबारा से रीवे करोगे, दोनों का डिफरेंस आएगा तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड पता चल जाएगा. That's what it is usually happening in this sort of questions. After the student weighed the cathode, she replaced it in the circuit and continued the experiment. She determined the mass of copper deposited at 5 minutes intervals. Okay. Plot the results in the table on the grid. Use the points to draw two intersecting straight lines of best fit. Might be मुझसे गलती हो जाए, लेकिन आप लोगों ने बेटा बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? इसलिए क्योंकि मुझे क्रिस्टल क्लियर नजर नहीं आएगा ग्राफ पे. तो जब 5 मिनट्स हैं तो आपके पास 0.28 है. ये आ गया पॉइंट. फिर 10 मिनट्स पे 0.54 है. आप चेक कर लीजिएगा. फिर 15 पे 0.62 है. ठीक है. फिर 20 पे 1.2 है. 25 पे भी 1.2 है. और 30 पे भी 1.2 है. और 35 पे भी 1.2 है. टेन पॉइंट फाइव फोर. ठीक है जनाब, ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है. मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए थे ना बेटे. ओ 1.12 इज मिसिंग. 20 पे 1.12 है. माय गुडनेस. 20 पे 1.12 है. 1.12 20 पे 1.12. ठीक है. और बेटा 15 पे कितना है? 0.62. 15 पे 0.62 है. चलो ओके. एक तो लाइन ये बन जाएगी बेटा हमारे पास. ठीक है. और दूसरी लाइन जो है ना वो ये बन जाएगी हमारे पास.
नहीं, ये भी सही नहीं। स्केल से बनेगी, जस्ट होल्ड इन सेकंड प्लीज। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोग चेक कर लीजिएगा बेटा, बिकॉज मैंने स्केच तो कर दिया है। आप लोग जरा टैली करके बता सकते हैं। 0.54 मुझे लगता है कि ये यहाँ होगा। 10 पे 0.54, 15 पे ये यहाँ होगा। आप चेक करके बताइएगा प्लीज। और आप इसको इंटरसेक्ट करते हुए भी दिखा सकते हैं। ड्रॉ ओके, नेट यार। ये हो गया सर्किट, ये आपको हो गया नॉर्मलस पॉइंट। फिर चेक कीजिएगा आप, ठीक है। Use your graph to determine how long it takes for 0.8 gram of copper to be deposited. 0.8 ग्राम ऑफ कॉपर अगर डिपॉजिट हुआ है तो टाइम कितना लगा है? 0.8 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट, तो टाइम कितना लगा आपको? ये लग गया तकरीबन जनाब 15 पॉइंट समथिंग, एज पर माई ग्राफ 15 पॉइंट समथिंग। 15.1 कर देते हैं। यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर ऑल द कॉपर टू बी डिपॉजिटेड। मेरे पास आ रहा है 25, क्योंकि 25 के बाद कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब सारा का सारा मास डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, तो मैंने जो ग्राफ बनाया उसके लिहाज से 25, आप एक्चुअली एक्यूरेट बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोलाइट का कलर होगा ब्लू। जब सारे का सारा कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? कलरलेस, इसलिए क्योंकि कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। बेटा ये जो वैल्यूज है ना, इनको आप चेक कर लीजिएगा, कि मुझे सही तरह से नजर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने बना दिया है, आइडिया दे दिया मैंने आपको, एंड आई होप यू कैन मैनेज इट। दैट्स ऑल फ्रॉम द पेपर।